granulocytes and agranulocytes, sorry, granulocytes and agranulocytes. अग्रेन्युलोसाइट्स में क्या पढ़ा हमने? उसके दो टाइप्स है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनो. अगेन लिम्फोसाइट के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, और ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने तीन टाइप पढ़े थे, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल. I've given you homework to make a flow table like this. I hope all of you have made this flow table by referring your textbook. Yes or no? Please message in the chat box whether you have made this table, yes or no. Yes, I'm not getting any of the responses. Children, have you made this table? Yes. Okay, only Janvi has made the table. Okay. Okay, very good. Chalo, theek hai. So I hope now all the children have joined. 68 children have joined already. Then we have already learned about the blood coagulation, blood clotting, that is also called as blood clotting. So we have seen this reaction. Whenever there is an injury or whenever there is a injury, what will happen? Our platelets as well as the tissue, they will release thromboplastin. This thromboplastin will form one enzyme called as the prothrombinase, which is also called as the thrombokinase. This will be activated when there is a calcium ion. So I've told you, if calcium deficiency is there, your bone will also become brittle as well as your coagulation rate will also be hampered. So prothrombin will be converted into thrombin, and this thrombin will convert this fibrinogen into fibrin threads. You can see in the diagram, these fibrin threads are trapping the blood cells or the blood corpuscles, and therefore the clot or coagulum will take place. Up till this we have already learned in the last lecture. So now let us move on to the blood group now. Blood group was being discovered by, the name of the scientist is Karl Landsteiner. Karl Landsteiner is a scientist who discovered about this blood group. Our human blood group includes ABO blood group system as well as RH blood group system. We will be learning both in detail. So you can see that we are having this different types of blood group, A plus, B plus, AB plus and O plus, that is positive, and A negative, B negative, AB negative and O negative. So these are the different types of blood group which is present in the human population. Let us go in detail. When we talk about the blood group, it is the presence of antigen on the surface of RBC. मतलब क्या? जो टाइप का एंटीजन आपके आरबीसी पे प्रेजेंट रहेगा वैसा आपका ब्लड ग्रुप रहेगा. देखो ये डायग्राम में आपको आसानी से समझ में आएगा. जहां पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ, प्लस से उसको नोट डाउन करो. देखो ये अपना आरबीसी है रेड वाला, उसके ऊपर आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है. दिस ब्लू ब्लू आर नथिंग बट दिस एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी. तो लेट अस से दैट दिस ब्लू कलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर आर ए एंटीजन. तो अगर ए एंटीजन रहेगा तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए रहेगा. अभी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ ब्लड ग्रुप की बात की है. आरएच फैक्टर में बाद में बताती हूँ. ठीक है, समझो ऐसा वाला स्ट्रक्चर है अपने आरबीसी के ऊपर. अगर ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, लेट अस से दैट इट इज बी एंटीजन. तो अगर बी एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट वाले फिगर में देखो, अगर ये दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर, देन द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी. पर अगर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ना ब्लू वाला ना पर्पल वाला, कोई भी वाला नहीं प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप विल बी ओ. समझ में आ गया मेरी बात? यस. सो जो टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है आपके आरबीसी पे, वैसा आपका ब्लड ग्रुप रहेगा. तो कौन से दो टाइप के एंटीजन होते हैं हमारे पास? या तो ए या तो बी. अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप. समझ में आ गया? अच्छा, अब you know that you have learned about Mendel का lesson, and in that you have already learned that this A and B blood group are the example of codominance. मतलब क्या? Blood group A and blood group B are equally dominant, है ना? और जो O ब्लड ग्रुप होता है वो रेसेसिव होता है. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया द एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी.
अभी आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम आपने लास्ट लेक्चर में तो बताया था कि एंटीजन का मतलब तो वो होता है जिसके लिए अपना बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है। मैंने आपको WBC में बोला था कि जब भी कोई एंटीजन अपने बॉडी में अंदर जाएगा तो अपना WBC का जो लिम्फोसाइट है वो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि फिर ये एंटीजन कैसे प्रेजेंट है यहाँ पे, तो लेट मी टेल यू, इट इज अ नोन्ड एंटीजन। ये एंटीजन्स को अपना बॉडी पहचानता है, इसके लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाता है। समझ में आ गया? सो दीज आर इन द कैटेगरीज ऑफ नोन एंटीजन्स एंड देयरफॉर आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर द सेम। I hope I'm very clear to all of you. So now just go through the written part which I've written. So our ABO blood group, yes. Okay, I will tell you what is Bombay blood group also. It is based on the presence or absence of two surface antigen. Okay, these are the chemical that induce the chemical immune response on RBC, namely A and B. अच्छा, इसके कॉम्प्लीमेंट्स में प्लाज्मा में दो टाइप के एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? द प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, दे आर नेमली एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। देन नेक्स्ट यू कैन सी ओवर हियर, अगर ए एंटीजन है तो उस प्लाज्मा में, ये देखो ये नीचे वाला डायग्राम किसका है? प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। और अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है। और अगर एंटीजन ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। पर अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगेन देखो ये टेबल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा है? ए है आरबीसी पे। पर एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है प्लाज्मा में? इट इज एंटीबॉडी बी। सो द ए ब्लड ग्रुप कैन डोनेट द ब्लड टू ए एज वेल एज ए बी। क्यों? क्योंकि ए तो है ही, और ए बी को क्यों कर सकता है? क्योंकि ए बी वाले के पास भी ए है। बट कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ए एंड ओ। ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Again, when we talk about B, again the same thing, just follow the flow table. You can see that it is the antigen present on will be B, antibodies in plasma will be antibody A. It can donate the blood to B and AB and can receive from B and O. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज इसको अच्छी तरह से समझो। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट ए बी, तो एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडीज कुछ भी नहीं है, डोनेट ए बी को ही कर सकता है और ले इन सबसे सकता है। पर अगर हम ओ की बात करेंगे तो इसके पास एंटीजन तो नहीं है पर दोनों एंटीबॉडी है, तो ये सबको डोनेट कर सकता है ब्लड, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, और इट कैन टेक ओनली फ्रॉम ओ। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वी कैन समराइज दैट O is the universal donor, है कि नहीं? O is the universal donor. क्यों यूनिवर्सल डोनर है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन नहीं है तो अगर ऐसा वाला ब्लड ग्रुप में किसी को भी दूंगी, फिर वो ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू ट्रिगर द इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रिगर नहीं करेगा बिकॉज इट डज नॉट हैव द एंटीजन। सो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, इट वाज बीन आस्क्ड 2-3 years बैक कि व्हाई ओ इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर, तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज, टेल मी द आंसर, बिकॉज इट डज नॉट हैव antigens on the RBC, so it cannot trigger the immunity system, and therefore it is called as a universal donor. जब हम AB की बात करेंगे तो I can say that this AB is a universal recipient. देखो आप, it can receive, it is a universal recipient. तो recipient का मतलब क्या है? ये किसी से भी रिसीव कर सकता है। हाँ, समझ में आ गया? It is a universal recipient because it can receive blood from any of the things. Very clear? चलो अभी और हम चलते हैं कि ABO ग्रुपिंग पे। So antigen A reacts with antibody A and similarly antigen B reacts with antibody B.
समझ में आया? सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, अगर ऐसा मिक्सिंग हो गया ब्लड का, ए का और बी का मिक्सिंग हो गया तो क्या होगा? क्लम्पिंग होगा। और इस क्लम्पिंग को क्या बोला जाता है? अग्लूटिनेशन। And reaction of antigen with antibody, antigen antibody reaction is called as agglutination or clumping. ठीक है, very clear to all of you. Next, as we have told you just now, O is called as a universal donor and AB is called as a universal recipient because it can accept. Next is about the RH grouping. ठीक है, ये तो अभी हमने सिर्फ ब्लड ग्रुप के बारे में बात किया, अब हम थोड़ा सा RH ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सो ये जो RH वर्ड है वो कहाँ से आया है? दिस RH वर्ड हैज कम फ्रॉम अ मंकी, दैट इज अ रीजस मंकी। सबसे पहले वहां पे फाइंड आउट हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। नाउ इट इज एंटीजन अगेन विच इज फाउंड ऑन द RBC। मतलब क्या? अगर समझो मेरा, इट इज डिनोटेड बाय D एंटीजन, D for dog वाला, it is denoted by D antigen। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर D एंटीजन होगा तो RH पॉजिटिव, D एंटीजन नहीं होगा तो RH नेगेटिव। समझ में आ गया? अगर D एंटीजन है तो पॉजिटिव, D एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव। तो अगर समझो किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो उसके RBC पे क्या क्या रहना चाहिए? उसके RBC पे एंटीजन A भी रहना चाहिए और एंटीजन D भी रहना चाहिए, तब वो जाकर A पॉजिटिव होगा। समझो किसी का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो एंटीजन कौन कौन से रहने चाहिए RBC पे? A एंटीजन, B एंटीजन एज वेल एज D एंटीजन। ठीक है, पर समझो किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ D एंटीजन। और समझो किसी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है तो उसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर एकदम स्पेसिफिकली बोलेंगे तो अभी हमने क्या बोला था कि ये O इज यूनिवर्सल डोनर, पर उसमें भी RH फैक्टर को अगर हम देखते हुए बोलेंगे तो O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और इसके लिए O नेगेटिव क्या होता है? सबसे रेयर ब्लड ग्रुप होता है, इट इज अ रेयर ब्लड ग्रुप। ठीक है, जिसका O नेगेटिव रहता है उसको जल्दी से ब्लड नहीं मिल पाता, जल्दी से ब्लड बैंक में से। ठीक है, सो RH फैक्टर इज एन एंटीजन फाउंड ऑन द RBC। RH पॉजिटिव मींस प्रेजेंस ऑफ दिस RH फैक्टर एंड नेगेटिव मींस एब्सेंस। Nearly 80% of the human beings are positive only. ठीक है, you can see with the diagram also, these yellow colors are the presence of this antigen which we can denote by D also. अच्छा, again just go through anti-RH antibodies. Again समझो what is anti-RH antibodies। समझो किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मैंने उसको गलती से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ये कर दिया तो उसका बॉडी ट्रिगर हो जाएगा, तो वो कंडीशन में उसको anti-RH एंटीबॉडीज दिया जाता है which are not naturally found। ठीक है, so the RH negative person can receive RH positive blood only and only once because it can cause the development of anti-RH antibodies in the blood. So second transfusion with the RH positive causes agglutination. समझ में आया? Therefore RH group should be matched before the transfusion. Very clear to all of you. चलो, अगर हम RH की बात करेंगे तो एक इससे रिलेटेड एक इसके बारे में भी जानते हैं और उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। नाउ व्हाट इज दिस इरिथ्रो? पहले इसका मतलब ही समझ लो। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? आरबीसी। ब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्ट होना, किसका? फीटस का, मतलब बच्चा। जो बच्चा माँ के गर्भ में है वो क्या होगा? वो मर सकता है। ठीक है, वो कैसे मर सकता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये कब पॉसिबल होता है? देखो, अगर मदर इज नेगेटिव, you can see in the diagram very clearly, just trace the diagram. If mother is negative and the bacha which she conceive is positive, yes, अभी आप मुझे बोलोगे कि बच्चा पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? Maybe because of the blood group which it has received from the father part. ठीक है, so mother is negative and the bacha which she is conceiving is positive, so what will happen? First delivery के वक्त तो प्रॉब्लम नहीं होगा,
because you will be learning in the lesson reproduction, बच्चे का और माँ का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है. देयर आर many reasons. मम्मी का और बच्चे का ब्लड जब दे आर प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं होता, इट इज नॉट क्रॉसिंग थ्रू प्लेसेंटा, so there is no mixing of blood. But during at the time of delivery, now just see what has been written on the slide. But at the time of first delivery, I'm telling about first, मेरे हर एक वर्ड को जिसको मैं emphasize कर रही हूँ उसको अच्छे से समझो. At the time of first delivery only, there is a possibility of what? Mixing of blood. ठीक है, तो समझो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला ब्लड मम्मी के ब्लड में चला गया, तो मम्मी का ब्लड ये पॉजिटिव को क्या समझेगा? एंटीजन समझेगा, ठीक है. और एंटीजन समझने के वजह से ये मम्मी का ब्लड क्या करेगा? उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा. समझा मेरी बात? मैंने क्या बोला? जस्ट गो थ्रू ओवर हियर. At the time of first delivery, there is a possibility of exposure of maternal blood to small amount with the Rh positive blood from the fetus. इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से this will induce, it will trigger the formation of Rh antibodies in the maternal blood. ठीक है. अच्छा, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चे की डिलीवरी हो गई. बट द प्रॉब्लम विल कम व्हेन देयर इज अ सेकंड प्रेगनेंसी. अगर वही मम्मी ने वापस सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव किया है और फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी समझो बाय चांस बच्चा इज पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा? माँ के बॉडी ने, माँ का जो WBC था उसमें जो लिम्फोसाइट है उसके पास एक पावर होता है मेमोराइजेशन का. अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जैसे अभी आप कुछ 11th में पढ़ोगे या अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया वो आप भूल जाते हो, बट आपका जो बॉडी का सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो मेमोराइज करके रखता है कोई भी चीजों को. इसीलिए आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू दिस पार्ट. सी, एक बार अगर हमें कभी किसी को चिकन पॉक्स हुआ है या आपको बचपन में पोलियो का डोज दिया गया है, तो कभी आपको पोलियो हुआ क्या या फिर से कभी चिकन पॉक्स हुआ क्या? नहीं होता है, जनरली नॉर्मली नहीं होता है. दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर इम्यूनिटी सिस्टम. क्यों नहीं होता है? बिकॉज बचपन में तो आपने 5 साल तक ही पोलियो का डोज पिया, पर ऐसा है क्या कि बड़े होने तक कभी वो पोलियो का वायरस आप नहीं आपके बॉडी में गया होगा? जाता ही है, पर आपका इम्यूनिटी सिस्टम उसको लाइफ लॉन्ग याद करके रखता है. ठीक है, तो दिस इज अ मेमोराइजेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर इम्यूनिटी सिस्टम, वो मेमोराइज करके रखता है. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो अच्छे से हो गई, पर सेकेंड प्रेगनेंसी में क्योंकि यहाँ पे बच्चे का ब्लड मिक्स हुआ था, तो माँ के बॉडी ने क्या बनाया है? ये पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज बना के रखा है. पर सेकेंड प्रेगनेंसी में अब प्रॉब्लम होती है. सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर ये फिर से पॉजिटिव है, तो जब डेवलपमेंट के टाइम पे बच्चे का ब्लड, माँ का ब्लड बच्चे के साथ मिक्स होगा, तो ये एंटीबॉडीज जो बना था वो भी मिक्स हुआ है, ये ब्लड के साथ मिक्स होगा और सारा एंटीबॉडीज, ये जो एंटीजन है बच्चे का, उसको मार देगा, जिससे कि ये सारे उसके जो इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज है वो ब्लास्ट हो जाएंगे. So this condition is called as a erythroblastosis fetalis. Just go through here. In case of her subsequent मतलब second pregnancy, RH antibodies from mother, जो माँ ने बनाया था RH antibodies, जो mother के body में था, leaks into the fetal blood and it will destroy the fetal RBC. This will be fetal मतलब it may cause death, or it may cause severe anemia and jaundice to the baby, and this condition is called as a erythroblastosis fetalis. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. अब आप बोलोगे कि इसका प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है क्या? तो यस, इसका सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन क्या है? जब भी वो माँ का प्रेगनेंसी हो जाता है, तभी उस माँ को एक इंजेक्शन दिया जाता है. कौन सा इंजेक्शन? एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है. तो एंटी RH एंटीबॉडी का मतलब क्या? एंटी का मतलब है अपोजिट या उसको मारने वाला. तो जो माँ ने RH एंटीबॉडी बनाया है अपने बॉडी में, तो उसको ही मारने के लिए एंटी RH एंटीबॉडी का माँ को इंजेक्शन दिया जाता है, सो दैट सेकेंड डिलीवरी में ये प्रॉब्लम ना हो. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द ब्लड ग्रुप. ठीक है.
अच्छा, अभी लेट मी सॉल्व द क्वेश्चंस। क्या क्या पूछा है बच्चे लोगों ने? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अच्छा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बेटा इज अ रेयर ब्लड ग्रुप, ठीक है। यस, इट्स अ रेयर ब्लड ग्रुप जिसके अंदर H एंटीजन होता है ऑन आरबीसी। H एंटीजन एंड एंटी H इन द सीरम, मतलब एंटीबॉडी इन द सीरम होता है। वेरी क्लियर? It's a rare blood group. Bombay blood group is a rare blood group which is denoted by H antigen. ठीक है, कोई ब्लड ग्रुप रेयर है इसका मतलब, इसका इसका क्या मतलब है? रेयर है मतलब कि पॉपुलेशन में उतना उसका ब्लड ग्रुप नहीं है सौरभ। रेयर है मतलब कि पॉपुलेशन में उतने लोग नहीं हैं, इसीलिए उसको रेयर ब्लड ग्रुप बोला जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? अभी दिखा है ना बेटा मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? RH एंटीजन का डिफरेंस है। अगर RH रहेगा तो पॉजिटिव, RH नहीं रहेगा तो नेगेटिव। देन मैम फिर O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा ना? यस, वैसे देखा जाए तो हम O को यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे, पर टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर हम RH को भी ध्यान में रखते हुए बोलेंगे तो यस, O नेगेटिव विल बी द यूनिवर्सल डोनर, करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया है ब्लड ग्रुप। So now let us have a recap for the blood vessels now. So we have finished all the part with the blood part. अभी हम blood vessels पढ़ने जा रहे हैं in short. So अगर blood vessels की अगर हम बात करेंगे तो there are 3 types of blood vessels. You can see the diagram also. Arteries which we denote by red in color, veins which we denote by blue in color, and the capillaries which are the branches of these arteries. ठीक है, सो जस्ट हैव अ रिकैप। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट अभी हार्ड जब मैं पढ़ाऊंगी तभी आपको ये सब चीजें आएंगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहती हूँ इसके बारे में। सो आई विल मूव ऑन वेरी फास्ट। ओ पॉजिटिव नहीं होगा देन यूनिवर्सल डोनर। व्हाट आई टोल्ड यू बेटा, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को देखकर बोलेंगे तो यस, ओ नेगेटिव पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल डोनर नहीं बोल सकते, क्योंकि ओ पॉजिटिव का ब्लड हम ओ नेगेटिव को नहीं दे सकते। ठीक है, चलो नाउ आर्टरीज के, अभी आप खुद ही इसके बारे में आपको आंसर देना आना चाहिए ना बेटा। ओ पॉजिटिव कैसे नहीं रहेगा? वी आर पॉजिटिव, ये डोनर या यूनिवर्सल डोनर है, ये रेसिपिएंट हम कौन से बेसिस पे बोल रहे हैं? द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अगर एंटीजन रहेगा और दूसरे के बॉडी में हमने दिया तो वो ट्रिगर करेगा इम्यूनिटी सिस्टम को। समझ में आया? तो चलो आर्टरीज के बारे में बात करेंगे। दे आर कैरिंग द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यू। दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, अगेन ये एक्सेप्शन को याद रखो क्योंकि हार्ट पढ़ाते वक्त मैं आपको इस बारे में पूछूंगी बार बार। सो एक्सेप्ट दिस पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। तो जो आर्टरी लंग्स के पास जा रही है वही सिर्फ एक ही ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बाकी के अपने बॉडी में जितने भी आर्टरीज हैं उनका सेम काम होता है, दे आर कैरिंग दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ अ डायग्राम, यू कैन कम टू द डायग्राम, यू कैन सी वेरी क्लियरली। देखो ये जो मोटा वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज आर्टरी। नाउ जब वो इधर आएगा पतला हो जाएगा तो आर्टेरियोल्स। यू कैन सी दिस ब्रांचिंग कॉल्ड एज द आर्टेरियोल्स। ठीक है, आर्टेरियोल्स वापस रीजॉइन होता है टू फॉर्म वेन्यूल एंड वेन्यूल जॉइंस टू फॉर्म द वेन। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? जस्ट वापस देखो, ये लिख लो अपने बुक में कैसे होता है ये। आर्टरी branches to form arterioles, arterioles branches to form capillaries, capillaries joins to form venule, capillaries joins to form venule, and venule joins to form vein. Shall I repeat it once again? Artery branches to form arteriole, arteriole branches to form capillaries, giving oxygenated blood to each and every organs. Again, this capillary is joined to form venule, and venule is joining to form the vein, which is carrying the deoxygenated blood. What is the difference between oxygenated and deoxygenated? Oxygenated means with oxygen, and deoxygenated means with carbon dioxide. Okay. Now, you don't have to learn in detail all this part. ठीक है, बस जस्ट एक बार देख लो कि आर्टरीज के 3 लेयर्स होते हैं। ट्यूनिका, जो ऊपर वाला लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाले लेयर को ट्यूनिका मीडिया और अंदर वाले लेयर को ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। ठीक है,
वैसे ही अगर हम वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स आप देख सकते हो, इट इज कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, क्यों टुवर्ड्स द हार्ट है? बिकॉज हार्ट से वो लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से CO2 बॉडी के बाहर निकलेगा। इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? पल्मोनरी वेन है एक्सेप्शन। इसके जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं उसको हम वेन्यूल बोलते हैं। और इस वेन के भी 3 पार्ट है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। Yes, so just now which I've told you, arterioles divides to form capillaries and capillaries unite to form the venules. You can see very clearly in the diagram. Okay, so this was just a small thing about this blood vessels. Now let us move on to the very important part of this lesson, that is about the heart. So I want all of you to note down the things, just don't listen. सिर्फ सुनते ही मत रहो, लिखते भी रहो, तो ही आपको याद रह पाएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा ये एकदम स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट द हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। ठीक है, when we talk about heart in detail, there are actually 2 types of heart, myogenic heart and neurogenic heart. Please लिखते भी रहो, myogenic heart and neurogenic heart. मायोजेनिक हार्ट का मतलब है जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स करेगा तो उसको हम बोलेंगे मायो। मायो का मतलब होता है मसल्स। सो अगर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स करेगा तो उसको हम बोलेंगे मायोजेनिक हार्ट। तो अपना हार्ट जो है वो मायोजेनिक है क्योंकि अपने हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं, जो हम पढ़ेंगे इस लेसन में। हाँ, अपने हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। अगर हम न्यूरोजेनिक की बात करेंगे तो न्यूरोजेनिक नाम से पता चलता है जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं तो उसको हम बोलेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। और एग्जाम्पल अगर मैं उसका बताना चाहूँ तो अर्थवर्म का जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है, चलो अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि अपना जो हार्ट होता है उसका साइज कितना होता है, अपने एक मुट्ठी के जितना, मतलब वन ओन फिस्ट के जितना, एक मुट्ठी के जितना। ठीक है, अपना हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? अपने दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। जब मैंने आपको लंग्स पढ़ाया था, रेस्पिरेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको उस समय बताया था कि अपने दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है और वो जगह को हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। स्पेलिंग आप देख सकते हो, स्लाइड में दिया है। सो इट इज प्रेजेंट in between the lungs and that location is called as a mediastinum. It is present in our thoracic cavity. ठीक है, then which derm से originated है? It is mesodermal in origin. mesodermal in origin. Very clear. कैसा ऑर्गन होता है? हॉलो ऑर्गन होता है, सॉलिड नहीं है, हॉलो है। हॉलो है तभी तो उसमें ब्लड आएगा जाएगा ना, सॉलिड रहेगा तो कैसे ब्लड आएगा जाएगा? सो हॉलो है, आप देख सकते हो शेप, इट इज कोनिकल एंड नो डाउट इट इज मस्कुलर ऑल्सो। ठीक है, अगर और हम शेप के बारे में जानेंगे तो ये ब्रॉड है एट द बेस एंड नैरो एट द एपेक्स। ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो एट द एपेक्स। अपना जो हार्ट है इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। यस, वेरी क्लियर। नाउ मैंने क्या बोला? टिल्ट है, लेफ्ट साइड में हार्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोग इसको मिस्टेक करते हैं कि लेफ्ट साइड में हार्ट है, तो अपना हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। कुछ लोगों का हार्ट, रेयरली, अगेन इट्स वेरी रेयर, maximum population are having the tilt towards left only, but rare cases में we can see the heart is tilted towards the right side also. So ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। Again, which is not a part of your textbook, which is something extra I've told you. Yes, अगर हम measure की बात करेंगे तो it is 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth.
Whereas when we talk about weight, तो अगेन मेल फीमेल में डिफरेंस है. मेल में अगर हम बात करेंगे तो इट इज अबाउट 300 ग्राम्स, बट अगर फीमेल की बात करेंगे तो 250 ग्राम्स. नो मयूरेश, वेट का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, काम का फर्क है. ठीक है, वेट से मतलब नहीं है, काम से मतलब है. काम मेल फीमेल में भी सेम करता है. ठीक है, वेट क्यों ज्यादा है? बिकॉज अगेन आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि ब्लड सेल्स ज्यादा है. मेल के अंदर ब्लड सेल्स ज्यादा है, तो इसके वजह से ये वेट में ज्यादा है. ठीक है, चलो. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कवरिंग ऑफ हार्ट, सो हार्ट इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. ठीक है, सो दिस हार्ट is been covered by a double layer of peritoneum, double layer of peritoneum called as the pericardium. Double layer of peritoneum called as peri means periphery of what? Cardia, so pericardium. So when I'm telling double layer, so there should be one outer and one inner layer. So outer layer is called as, लिख के लो, यहाँ पे नहीं लिखा है स्लाइड में. The outer layer is called as fibrous pericardium, fibrous pericardium, and the inner layer is called as serous pericardium. तो आप क्या करोगे, पेरिकार्डियम को सेंटर ऑफ ए पेज में लिखो, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो. वन साइड राइट ऑन फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरे साइड लिखो सेरस पेरिकार्डियम. फाइब्रस क्या बताया मैंने, आउटर मोस्ट लेयर. सेरस क्या बताया मैंने, इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, अच्छा. ये फाइब्रस पेरिकार्डियम क्योंकि ऊपर का लेयर है, तो इट शुड बी टफ, इट शुड बी इनइलास्टिक. यस, एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, whereas the serous pericardium is again made up of two layers. It is again made up of two layers. Write down, note down. They are parietal layer and the visceral layer. समझाऊं आपको क्या बोला मैंने? सेरस पेरिकार्डियम जो है, जो इनर मोस्ट वाला लेयर है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स. दे आर parietal layer and visceral layer. अच्छा, अब ये जो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर है, इन दोनों के बीच में हमें स्पेस नजर आता है. वो स्पेस को बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस, जिसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है, क्या काम है ये फ्लूइड का? इन वन वर्ड, इट विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. फ्रिक्शन से बचाएगा, शॉक एब्जॉर्बर से बचाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत रनिंग कर, आपका हार्ट बहुत जोर जोर से बीट कर रहा है, तो हार्ट ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान कौन देगा? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो इट विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. वेरी क्लियर. तो क्या क्या बात बताई मैंने कवरिंग ऑफ हार्ट के बारे में? Our heart is a covered by double layer of peritoneum called as pericardium. So pericardium is two layer. So outer layer is called as fibrous pericardium and the inner layer is called as a serous pericardium. Fibrous pericardium is tough, it is inelastic and made up of fibrous connective tissue. हमेशा याद रखो बच्चा लोग, कोई भी ऑर्गन हो, फिर वो हार्ट हो, किडनी हो, कोई भी ऑर्गन हो, हमेशा जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से ही बना रहता है. ठीक है, अगर हम सेरस पेरिकार्डियम की बात करेंगे तो सेरस पेरिकार्डियम इज अगेन मेड अप ऑफ टू लेयर्स, दैट इज पैराइटल लेयर एंड द विसरल लेयर. दोनों के बीच में जो स्पेस है पैराइटल और विसरल के बीच में, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस, जिसके अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या काम करता है? इट विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू इतना? अच्छा, वेदांत हैज अ प्रॉब्लम, क्या पूछ रहे हैं? जिनका हार्ट, नहीं बिल्कुल नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इट इज जस्ट अ टिल्ट बेटा, टिल्ट है उसका राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में. देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, yes, which she has given 12th standard now. ठीक है, she is also having the dextrocardia, means tilt towards the right hand side. Absolutely no problem, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. चलो, अगर हम हार्ट के वॉल्स के बारे में बात करेंगे तो देर आर 3 वॉल्स ऑफ हार्ट. हार्ट के वॉल्स के बारे में बात कर रही हूं मैं, तो वो भी प्लीज लिख लो. वॉल्स ऑफ हार्ट, WALLS, वॉल्स ऑफ हार्ट. सो दे आर अगेन 3 लेयर्स. हाँ, अब ये डायग्राम में आप देख नहीं पाओगे, बट 3 लेयर्स होते हैं. दे आर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. क्या क्या नाम बताया मैंने?
एपी, बायो में एपी का मतलब ऊपर, मायोकार्डियम मतलब बीच वाला, और एंडो का मतलब बायो में क्या होता है, अंदर। सो जो बाहर का वॉल है हार्ट का उसको हम बोलेंगे एपिकार्डियम, ठीक है। अंदर वाले लेयर को बोलेंगे मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलेंगे एंडोकार्डियम, ठीक है। अच्छा, एक और चीज उसमें आप नोट डाउन कर लो, मायोकार्डियम में जो मायोकार्डियम होता है वो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, कार्डियक मसल से बना होता है, और यही कार्डियक मसल हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है, ठीक है। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो अगेन आप पहले से पढ़ते आए हो कि अपना हार्ट कितना चेम्बर है, 4 चेम्बर्स है। तो अपर 2 चेम्बर्स कैसे होते हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम वेरी क्लियरली, ये दोनों अपर चेम्बर्स है और ये दोनों लोअर चेम्बर्स है। ये जो अपर चेम्बर्स होते हैं दे आर स्मॉल, yes they are thin walled, आप देख सकते हो डायग्राम में एकदम पतला सा लेयर है, so they are small, they are thin walled and they are called as a receiving chambers। ये सारे पॉइंट्स को प्लीज नोट डाउन करो बेटा, बिकॉज आज मैं आपको सिर्फ एक्सटर्नल तक ही पढ़ाऊंगी, इंटरनल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो आई होप आप सब लोग एक्सटर्नल पढ़ के रखोगे तभी मैं समझा पाऊंगी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप नोट डाउन भी करते रहो। Heart consists of 4 chamber. We are learning the external structure of heart now. External structure, no doubt. The diagram which I have shown is the internal structure, but it is the external structure of heart. ठीक है? Wait. ठीक है. See here, external structure of heart. It has 4 chambers. The upper 2 chambers are called as what? Upper 2 chambers are called as atria या फिर atrium भी बोल सकते हैं, atria और atrium। क्या खास बात है अपर 2 चेम्बर के बारे में, दे आर स्मॉल एंड दे आर थिन वॉल्ड एंड दे आर रिसीविंग चेम्बर्स, रिसीव करते हैं ब्लड को। अगर हम नीचे के चेम्बर की बात करेंगे, लोअर 2 चेम्बर्स के बारे में बात करेंगे, तो लोअर 2 चेम्बर्स यू कैन सी इन द डायग्राम, दे आर लार्ज, थिक वॉल्ड एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम, आई होप आपको शायद लेबलिंग छोटा लग रहा होगा। नेक्स्ट टाइम आई विल एनलार्ज दिस डायग्राम एंड शो यू, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस साइड लेफ्ट एट्रियम मार्किंग है, इस साइड लेफ्ट वेंट्रिकल मार्किंग है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे शुड बी द राइट वेंट्रिकल एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट राइट एट्रियम। अगेन बच्चा लोग प्लीज ये ध्यान दो कि ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे हार्ट का, तो आपके राइट हैंड साइड पे आपको लेफ्ट लेबलिंग करना है, क्योंकि आप अपना हार्ट देख के ड्रॉ कर सकते हो क्या, नहीं। आप अगर सामने वाले का हार्ट देख के ड्रॉ कर रहे हो तो सामने वाला का हार्ट कैसे होगा, आपका राइट हैंड साइड विल बी सामने वाले का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को याद रखो कि जब आप ड्रॉ करोगे डायग्राम तो आपके राइट हैंड साइड पे शुड बी द लेफ्ट मार्किंग एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड पे शुड बी द राइट मार्किंग। when it is a ventral view of heart, ventral view of heart है ना, ventral view मतलब जब आपके सामने कोई खड़ा है पर जो आपका सामने वाला है वो पीछे मुड़ गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम कौन सा व्यू बोलेंगे, डॉर्सल व्यू बोलेंगे। आपके सामने जो खड़ा है पेशेंट, मैंने अगर उसको डॉर्सल कर दिया, उसको टर्न कर दिया, तो फिर लेबलिंग वापस चेंज हो जाएगा, फिर आपके राइट हैंड साइड पे उसका भी राइट हैंड साइड आ जाएगा और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे उसका भी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो प्लीज ये चीज को ध्यान दो कि आप कौन सा व्यू बना रहे हो, आप वेंट्रल व्यू बना रहे हो या डॉर्सल व्यू बना रहे हो। अगर वेंट्रल व्यू बनाओगे तो उल्टा लेबलिंग करोगे, अगर डॉर्सल व्यू बनाओगे तो सेम लेबलिंग करोगे, ठीक है। चलो अगेन वंस अगेन कम बैक टू द हार्ट। Now, when we see about heart from outside, अगर हम बाहर से देखेंगे तो again we can see a groove over here। groove का मतलब क्या होता है बायो में, डिप्रेशन,
we can see a groove present called as depression. वो groove को sulcus भी बोला जाता है medical term में, SULCUS, sulcus. So we can see a transverse groove or a sulcus present between the two atrias, and this is called as atrioventricular groove or atrioventricular sulcus. लिखा अपने नाम? क्या बताया मैंने? दोनों एट्रिया के बीच में बाहर पर बताओ ना मैम. हाँ, सल्कस के बारे में बताओ ना मैम. ग्रूव डिप्रेशन. डिप्रेशन इज कॉल्ड एज ग्रूव. जैसे आप अपने फिंगर्स को ज्वाइन करो, चारों फिंगर्स को ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद आप उसको क्या देख सकते हो? दोनों फिंगर के बीच में ग्रूव नजर आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो वो जो डिप्रेशन है वो ग्रूव है, उसी को सल्कस बोला जाता है. ग्रूव को ही सल्कस बोला जा रहा है, और ग्रूव और सल्कस का मतलब ही होता है डिप्रेशन. समझ में आ गया? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना हार्ट अंदर से 4 चेम्बर है, तो अगर हम 4 चेम्बर बोलेंगे तो बाहर से हमें उसका डिप्रेशन नजर आएगा ना कि वो अंदर से 4 चेम्बर है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, ओके. सो the transverse groove or sulcus which is present between the atria is called as the it is called as interatriosulcus or the groove. Similarly, we can see the groove in the ventricles also, and that will be called as an interventricular groove or sulcus. Interventricular groove or the sulcus. वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ये कर्सर में आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक ग्रूव नजर आ रहा है. तो ये ग्रूव किसके बीच में? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और सल्कस. तो मैंने आपको 3 ग्रूव के बारे में बताया. एक ग्रूव जो एट्रिया के बीच में है, दूसरा ग्रूव जो वेंट्रिकल के बीच में है, और तीसरा ग्रूव जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है. तो जो ग्रूव या सल्कस एट्रिया के बीच में है उसको हमने क्या नामकरण किया? इंटर एट्रियो ग्रूव. जो ग्रूव वेंट्रिकल के बीच में है उसको हमने क्या नाम किया? इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, क्योंकि बायो में इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन. और जो ग्रूव एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो डायग्राम में वेरी क्लियरली, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और दी सल्कस. समझ में आ गया इतना पार्ट? ठीक है. अच्छा, फिर अब हम राइट और लेफ्ट साइड के बारे में डिस्टिंग्विश करेंगे. तो राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लिख लो, right side of the heart contains deoxygenated blood, whereas the left side of the heart contains oxygenated blood. Left side contains oxygenated blood. Please ये छोटी छोटी चीजों को याद रखो, otherwise internal heart में बहुत confusion होगा आपको. मैं जितना भी पॉइंट्स अभी लिखवा के दे रही हूँ ये अच्छे से लिख के रखो. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इतना क्लियर है सबको? अब देखो, यहां से देखो, अब ये वाला डायग्राम देखो. ये अपना कौन सा साइड है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ठीक है. अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूंगी तो आप देख सकते हो ब्लू कलर का चीज यहां से बाहर आ रहा है, ब्लू कलर का ट्यूब बाहर आ रहा है. ये जो ब्लू कलर का ट्यूब है इसका नाम है पल्मनरी ट्रंक. तो मैं कैसे सेंटेंस में बोलूंगी? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल अराइजेस पल्मनरी ट्रंक which divides into left and right pulmonary artery. So देखा ना आपने, यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है. Again I am repeating my sentence what I told you. From right ventricle arises pulmonary trunk है. तो ट्रंक है तो उसका ब्रांचेस होना ही है. तो क्या है ब्रांचेस का नाम? लेफ्ट एंड राइट पल्मनरी आर्टरी. And this left and right pulmonary artery will join into our lungs, giving our lungs CO2, and that CO2 we will do exhalation. Very clear? चलो अब राइट साइड की, लेफ्ट साइड की बात करो. From left side you can see this part, ये जो मोटा सा रेड कलर का दिख रहा है, it arises from the left ventricle.
So from left ventricle arises systemic aorta. Systematic नहीं बोलना है, systemic, SYSTEMI, systemic aorta. या फिर आप कोई कोई बुक में इसको डॉर्सल एओर्टा के नाम से भी जान सकते हो. वेरी क्लियर. ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या बताया. जस्ट टेल मी वेदर यू हैव रिटन द सेम थिंग. मैंने आपको बताया कि अपना हार्ट 4 चेम्बर है, अंदर से 4 चेम्बर है, ठीक है, पर बाहर से हमें, अभी हम आज क्या पढ़ रहे हैं, आज हम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं. तो अभी हमने तो हार्ट को कट नहीं किया है, तो जब तक हम कट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर 4 चेम्बर्स है. यस, ये तो हमें, मुझे पता है, आपको पता है, इसलिए मैंने बताया कि 4 चेम्बर है. पर बाहर से देखने में हमें सिर्फ ऐसे ऐसे ग्रूव्स नजर आएंगे, ठीक है, डिप्रेशंस नजर आएंगे, जिसको आप सल्कस भी बोल सकते हो. फिर मैंने आपको सल्कस के बारे में बताया. मैंने क्या बताया, सल्कस पढ़ने के पहले आई हैव टोल्ड यू, जो अपर 2 चेम्बर्स होते हैं हार्ट का, उसको हम एट्रिया बोलते हैं या एट्रियम बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, दे आर व्हाट, दे आर स्मॉल, दे आर थिन वॉल्ड एंड दे आर रिसीविंग चेम्बर. वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, वेंट्रिकल्स लोअर चेम्बर है, लार्ज है, थिक वॉल्ड है और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स है. फिर मैंने आपको ग्रूव्स के बारे में बताया, सल्कस के बारे में बताया. जो सल्कस या ग्रूव दोनों एट्रिया के बीच में, उसका नाम है इंटर एट्रियल ग्रूव और सल्कस. जो ग्रूव या सल्कस वेंट्रिकल के बीच में, उसका नाम मैंने बताया इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव और सल्कस. जो ग्रूव या सल्कस एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, उसका नाम मैंने आपको बताया एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और सल्कस. ठीक है. फिर I've told you that right side contains deoxygenated blood, left side contains oxygenated blood. Then I've discussed about from right side में भी right ventricle, from this lower chamber, from right ventricle arises pulmonary trunk, which branches into left and right pulmonary artery, carrying deoxygenated blood to the lungs. Then I've told you about left side also similarly. From left side arises what? Systemic aorta or dorsal aorta, which is divided into, you can see in the diagram, it is divided into many arteries, distributing oxygenated blood to all parts of our body. ठीक है, very clear. अच्छा, अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सी, अपने को जो भगवान ने, हमको जो भगवान ने हार्ट बनाया, कोई भी ऑर्गन बनाया है, तो इतना परफेक्ट है कि उसमें एक भी जगह थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है. कैसे, देखो, अभी क्या होता है, जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यस, जब मेरा हार्ट बीट कर रहा है, तो समझो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कोई तो बलून दे दिया, और बलून के अंदर मैंने आपको 2 स्ट्रॉज डाल के दे दिए, और वो बलून बंद, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स होगा. तो जस्ट इमेजिन नाउ, जब ये मैंने 2 स्ट्रॉ डाले हैं बलून के अंदर, और वो बलून कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, तो वो जो स्ट्रॉ मैंने अंदर 2 डाले हैं, क्या वो उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे, वो सेपरेट होंगे कि नहीं? यस, श्योरली हो सकते हैं सेपरेट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके अंदर. तो वैसे ही अपने हार्ट के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो दोनों ट्यूब हैं, जो ट्यूब का नाम अभी मैंने बताया पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एओर्टा, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होना चाहिए व्हेन आवर हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. उसके लिए एक इंतजाम किया गया है. क्या इंतजाम है? ये जो पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा है, दे आर कनेक्टेड. क्या बोला मैंने? पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एओर्टा, दे आर बीन कनेक्टेड by each other by means of ligamentum arteriosum. लिखो, स्पेलिंग में बता रही हूँ, LIGAMENTUM, ligamentum arteriosum, ARTERIOSM. देखो, नाम से ही अगेन आपको पता चल रहा है, लिगामेंट अगर मैं बात कर रही हूँ तो इट इज मेड अप ऑफ अ कोलाजन फाइबर. करेक्ट है, मतलब कि थिक फाइबर है. मतलब अपना हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो ये जो दोनों ट्यूब
है अंदर, पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एओर्टा, वो अपने जगह से नहीं हिलना चाहिए, इसीलिए दे आर बीन कनेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द लिगामेंट आर्टेरियोसम। बट जब हम अपने मम्मी के वूम में थे, जब अपने माँ के गर्भ में थे, तब ऑब्वियसली ये हार्ट इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं था। उस वक्त अगर हम कोई फीटस का हार्ट देखेंगे तो ये जो लिगामेंट अभी हम सबके हार्ट में दिख रहा है, वो क्या था? पहले डक्टस आर्टेरियोसम था। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? तो देखो, अब मैं वापस वो सेंटेंस को रिपीट कर रही हूँ और समझने का कोशिश करो। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जब भी अपना हार्ट फीटस कंडीशन में था, तब ये जो बांधा गया है, जो कनेक्शन है, वो डक्टस था, मतलब एक पतला सा डक्ट से बना था। पर जैसे जैसे मैं आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो ये जो डक्ट है वो किस में बदल जाता है? लिगामेंट में बदल जाता है। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग माई होल सेंटेंस। सी, प्लीज नोट डाउन, pulmonary trunk and systemic aorta are connected by dash. What is that dash? By ligamentum arteriosum, which is, again I'm continuing my sentence, which is remnant of ductus arteriosum of fetus, which is a remnant of ductus arteriosum of fetus. I hope I'm very clear. Remnant मतलब पहले वैसा था, हाँ, डक्टस आर्टेरियोसम ऑफ द फीटस। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ वन मोर स्मॉल पार्ट। जैसे अपना हार्ट हम जानते हैं कि अपने पूरे बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड देता है, अपने सारे बॉडी के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। कैसे देता है, कैसे लेकर आता है, वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। बट ये तो जनरल पॉइंट है कि अपना हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला देता है और सारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड लेकर आता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट के पास भी खुद का ब्लड वेसल्स होता है? तो यस, हार्ट के पास भी उसका खुद का ब्लड वेसल्स होता है, इन द फॉर्म ऑफ, लिख लो, blood vessels of heart. So blood vessels of the heart is in the form of coronary artery and coronary vein. CORONARY, coronary artery and coronary vein. कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ऑक्सीजन वाला ब्लड देता है, और जो कोरोनरी वेन है वो हार्ट के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। समझ में आ गया? Yes, so this was what I am going to teach you for today. Tomorrow we will be learning more detail internal structure of heart and from where to where the blood is flowing, कैसे flow करता है और कैसे distribute किया जाता है। ठीक है, तो again just have a recap whatever we have learned today. So today we have started with this blood group. ठीक है,